Hello students, welcome to our next lecture of chemistry. We are going to start a new chapter today, that is states of matter. Now whenever you hear a word matter, you try to recollect the definition of matter, that matter is any substance which can be felt by one of our senses. That is matter. It has mass, it occupies space. And if we try to understand the types of matter, we have already studied in a 9th and 10th standard that matter can be solid, can be liquid, can be gas, can be a plasma state which take place at a very high temperature in sun and star, or can be a super cool state of matter where matter loses identity into individual atom. But we are going to discuss more about gaseous state in this chapter and a few properties of liquid state. And the detailed explanation of solid state will be done in 12th standard chapter solid state chemistry. So this chapter is mostly focused on the gaseous state. But to start with the chapter, let us brush up with the basic idea of solid, liquid and gas. We know that in case of solid, the particles, atom, molecules and ions are very close to each other because of very strong intermolecular force of attraction. Secondly, they are rigid, they have definite shape, they have definite volume, but their motion is restricted. They have only one kind of a movement, that is vibration, and that too on response of certain energy. For example, you take a piece of wood, bang it, there will be a sound. So when you supplied certain energy, when you knock it, you supplied certain energy due to which the molecule inside that wood will vibrate and gives you a sound, that is due to vibration. So very restricted motion. Liquid has an intermediate property. When you talk about gases, the molecules are very far away from each other because of very weak intermolecular force of attraction. They do not have definite shape, they do not have definite volume. They occupy the volume of the container जिसमें उनको रखा गया है. Plus, the most important thing about gas, that gas is a highly energized state. सबसे ज़्यादा energized state gas है. Reason, the movement. गैस के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसके कंट्रोल में भी नहीं है, दैट इज मोशन ऑफ गैस. गैस मॉलिक्यूल्स कैन शो ट्रांसलेशन मोशन, दैट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ एंड चेंजिंग द डायरेक्शन. कैन शो अ रोटेशन मोशन, that is if it is a diatomic molecule like two hydrogen atoms together in H2, they will show a rotation at the mean position. Plus they show vibrations. The two atoms will attract, repel. The attraction is due to nucleus of one atom and the electron of the other atom. So they will attract, and because of nucleus they will repel. So they show vibration, they show rotation, they show translation. So they have all three kind of motion, and we know that the energy due to all these three kind of motion is called as kinetic energy. So gas will have maximum amount of kinetic energy. That is why we say that gas is a highly energized state. Okay. Now this lecture will be totally based on intermolecular force of attraction. सॉलिड्स में बहुत हाई होते हैं, गैस में नेग्लिजिबल होते हैं. बट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, एंड दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर. सो फॉर एग्जाम्पल if we take water vapors in a closed container, H2O vapors, and we cool it, so what will happen? H2O, that is if you remember from polarity, that H2O में O is delta negative, H is delta positive. It is a V-shaped molecule of an angle 104 degree and 28 minutes. So it's a V-shaped molecule. So when you take water vapors, V-shape in a container, you try to cool it. So what will happen when you cool it? When the temperature goes down, the first thing is the effect on the kinetic energy, because kinetic energy is totally controlled by heat. If you cool it, it will lose heat, the water vapor will lose heat, the kinetic energy of the molecule decreases, because kinetic energy is directly proportional to temperature. Kinetic energy is equal to 3/2 RT according to physics, kinetic theory of gases. So it clearly indicates that kinetic energy is directly proportional to temperature. So when you cool water vapor, what will happen? The kinetic energy of these V-shaped water molecule will decrease, they will move slowly. When they move slowly and when you compress them, they will come close and they will develop some kind of intermolecular force of attraction, and now they are being attached to each other. तो ये अपने आप में force of attraction develop करके एक दूसरे से attach हो जाते हैं. ऐसे ही n numbers of molecule will come and attach together,
एंड व्हेन दे फॉर्म अ लार्ज बल्क मॉलिक्यूल, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच है वाया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द लार्ज मॉलिक्यूल settle down to the bottom and converts into a liquid. And when you cool it further and take it to 0 degrees Celsius at atm pressure, the molecules will align themselves in a perfectly ordered manner to form a crystalline ice. So what is happening here? Basically यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप टेम्परेचर से और प्रेशर से मॉलिक्यूल्स को साथ में लेके आ रहे हैं, जिससे वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं, और जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं, दे convert their state, gas से liquid, liquid से solid. Similarly, when you start heating solid, what happens? They will undergo vibration. The molecules which are arranged in a perfectly manner, इनके बीच के intermolecular force of attraction weak हो गए, ये दूर होते जाएंगे और वो liquid में convert हो गए, और heat करने पे और भी weak होके gas में convert हो जाएंगे. मतलब temperature controls the kinetic energy and also the intermolecular forces of attraction. Okay, so now we are going to discuss all different types of intermolecular forces of attraction, जिसके वजह से change of state हो जाता है. बट आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि दो टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं. वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर. इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में, बिटवीन द एटम्स, दे कैन बी अ कोवैलेंट फोर्सेस, आयोनिक फोर्सेस, मेटालिक फोर्सेस एक्सेट्रा. जो एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं उन फोर्सेस को इंट्रा, INTRA, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं. और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, एटम्स के बीच में होते हैं, नॉन पोलर एटम्स के बीच में होते हैं, उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो वीक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिक्विड H2O, वाटर जो है, उसको जब आप हीट करके गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें वाटर के जो बॉन्ड्स है, O और H बॉन्ड, ये ब्रेक नहीं होते, बल्कि आप क्या करते हो कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो वाटर के बीच में है, ये ब्रेक करते हो और ये दोनों गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो आप इनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कंपैरेटिवली वीक होता है. और ये जो बॉन्ड है O और H के बीच में, ये कोवैलेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा, जो बहुत स्ट्रांग होता है. तो जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करते हो, इंट्रा नहीं करते हो. वाटर को डिकम्पोज नहीं करते हो, आप वाटर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ हीट. यू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर वीक. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं. इंट्रा, which is strong, it is between the atoms in the molecule, it can be covalent, it can be ionic, it can be metallic. In case of force of attraction between the molecules, दो molecules के बीच में जो होते हैं, that is inter, that is weak. So let us try to understand what are the different types of intermolecular force of attraction which are responsible for the change of state. I'll rub this out. So the topic will be intermolecular forces of attraction. So intermolecular forces of attraction was first proposed by a scientist whose name was John van der Waal in 1837. तो वैन डर वाल नाम का एक साइंटिस्ट था. वैन डर वाल 1837 से 1823 के बीच में ही हैज़ डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसको हम लोग वैन डर वाल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं. अब वैन डर वाल फोर्सेस कौन से होते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस इज डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सेकेंड इज डाइपोल induce dipole force of attraction. Third is dispersion, or also called as London forces. Dispersion forces, also called as London forces. ये तीनों वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं. इसके अलावा दूसरे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं, जैसे आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ion induce dipole force of attraction and hydrogen bonding, a special type of forces. So we are going to discuss all these forces in detail. But ये तीन वैन डर वाल की कैटेगरी में आते हैं, that is dipole dipole force, dipole induced dipole and dispersion or London forces. They comes under the category of van der Waals forces. Now first let us talk about dipole dipole interaction. Now dipole dipole interaction is normally seen between the molecules which are polar, which have two poles in them, positive poles and negative poles, due to large difference in their electronegativity. For simple example, suppose if I consider HCl. Now HCl का natural state gas होता है. Okay. Now what happened when HCl is formed due to a covalent bond, that is a sharing of electrons, due to more electronegativity, the electron shifts at the area of chlorine. ये electron जैसी chlorine के area में shift होगा, because chlorine is more electronegative than hydrogen atom, so it will pull this electron pair towards itself. तो electron transfer नहीं होगा, shift होगा. So now chlorine atom will have more electron density because of shifting of electron towards the chlorine. So it will have a delta negative charge and hydrogen will carry delta positive charge. This is a polar molecule having two poles in it due to shifting of electron towards more electronegative atom. So electron transfer नहीं हुआ, shift हुआ है. तो आपने HCl गैस लिया एक कंटेनर में, ओके, पिस्टन है उसमें. पिस्टन जैसे आप नीचे की तरफ मूव करोगे, ओके, दिस HCl गैस विल कम क्लोज टू ईच अदर, और अब आप HCl गैस को कूल करो. So when you cool HCl gas, first thing they will lose their kinetic energy and the HCl will start moving at a very slow rate, and when you compress them, these HCl molecule will come close to each other. What happens when they come close to each other? When they come close to each other, one of the HCl molecule, when come close to the next HCl molecule, the H plus of this HCl will try to form a partial bond with this Cl minus of the another molecule. फिर ये HCl है, ये दूसरे HCl के साथ में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बनाएगा, ये एक और एक HCl के साथ में डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस का बॉन्ड बनाएगा. Now these type of partial bonds which are formed, now these type of bonds which are formed between the molecules due to interaction of two poles, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल विद दी अदर मॉलिक्यूल. सो मतलब बेसिकली ये एक डाइपोल है, ये दूसरे डाइपोल, डाइपोल मीन्स डाइपोलार, टू पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल. सो एक मॉलिक्यूल जो डाइपोलार है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में वो क्या कर रहा है, पार्शियल बॉन्ड बना रहा है विद दी ऑपोजिट एटम्स आर अट्रैक्टिंग विद ईच अदर. पार्शियल बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि इट्स नॉट अ कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज नॉट अ इंट्रा बॉन्ड, इट इज इंटर बॉन्ड. मतलब वो साथ में आके रुक जाएंगे. सपोज ये H प्लस है और Cl माइनस, दे विल कम क्लोज एंड दे विल स्टे हियर. ओके, सो दे विल नॉट ओवरलैप एंड फॉर्म अ बॉन्ड, नॉट लाइक दिस. दे विल कम क्लोज एंड अटैच, गेट अटैच्ड टू ईच अदर. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड where a polar molecule approaches the another polar molecule, where the negative charge of the one molecule get attract to the positive of the another, these type of bonds are called as dipole dipole force of attraction. So इस force of attraction को हम लोग dipole dipole force of attraction बोलते हैं, जो polar molecules के बीच में देखने को मिलता है. and it is very easy to understand. Now what you need to remember, molecule अगर stationary है, remember if the molecule is stationary, then dipole dipole forces stationary है, मतलब रुका हुआ है, is inversely proportional to r cube. R is the distance between two molecules. Okay, so it is inversely proportional to the r cube if the molecule is stationary. But if the molecule अगर HCl rotate हो रहा है, दूसरा molecule भी HCl rotate हो रहा है, so ये जो force of attraction था ये stationary molecule के था. लेकिन अगर molecule rotate हो रहा है, so dipole dipole forces will be inversely proportional to r6, that is the 6 square of the distance between the molecule if the molecule is rotating. So it is for rotating molecule, ये याद रखने का. And the first one जो मैंने 1/r3 लिखा है, that is stationary molecule. So this is for stationary molecule. So if the molecule is stationary, then its dipole dipole force is inversely proportional to the r cube. R stands for the distance between the molecule. और अगर वो rotating है तो r6. और जितना ज़्यादा polarity होगा उतना ज़्यादा force of attraction होगा. मतलब HCl से ज़्यादा polar HF है. So when you take 2HF,
delta minus delta plus, the intermolecular force of attraction between this will be stronger as compared to 2HCl because HF में fluorine is more electronegative than hydrogen, and also fluorine is more electronegative than chlorine. So here the negative intensity of the fluorine is much more higher as compared to the negative intensity of the chlorine. So fluorine और hydrogen जो bond बनाएंगे intermolecular forces वो strong होगा as compared to this, जिसके वजह से इनको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसके लिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एज कंपेयर टू दी अदर. तो ये सारे फोर्सेस बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं सब्सटेंस के, कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है. सो दिस इज अबाउट डाइपोल फोर्सेस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सेकेंड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. मतलब यहां पर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट करेगा और उसके साथ में इंटरैक्शन करके बॉन्ड बनाएगा पार्शियल. दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. इंड्यूस मतलब पोलैरिटी क्रिएट करना, किस में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में. कौन क्रिएट कर रहा है, एक पोलर मॉलिक्यूल. सो दैट विल बी कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन. मतलब सपोज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को मुझे एक्सप्लेन करना है, तो सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है AB. दिस मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर. ठीक है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है पूरा. आप उसको एक दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड कर रहे हो, C एक नॉन पोलर है. तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन AB एंड C के इंटरैक्शन ऐसा होगा कि C भी क्या होने लग जाएगा, पोलर होने लग जाएगा. और जब वो पोलर हो जाएगा तब A और B C के साथ में इंटरैक्ट करके एक बॉन्ड बना देंगे. तो पहले वो पोलर नहीं था, अब उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हुई. किसके वजह से, एक पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस करी और उससे अटैच हो गया. तो सच टाइप ऑफ इंटरैक्शन विल बी कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. फॉर एग्जांपल बेंजीन. बेंजीन इज C6H6 एंड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स. आपको पता होगा ये पाई बॉन्ड अपनी जगह से मूव करते हैं, दैट इज रेजोनेंस. तो हम लोग इस बेंजीन को ऐसा भी स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं वे दीज सर्कल रिप्रेजेंट्स दी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब ये मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट डू, यू टेक बेंजीन और बेंजीन में बहुत सारा अमोनिया गैस बबल करो, डालो उसके अंदर हाई प्रेशर पे. नाउ इफ यू टॉक अबाउट अमोनिया, अमोनिया इज NH3 पिरामिडल शेप, पिरामिड के जैसा रहता है, 3 हाइड्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हैज लोन पेयर ऑन इट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में इनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो ये एक लोन पेयर है और दीज आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर. नाउ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, so it will pull the electron pair toward itself. So nitrogen will have partial negative charge and hydrogen will have partial positive charge. Now this ammonia molecule is basically a polar molecule. Now when you add lot of ammonia in benzene, what happen, these positive ends, that is the hydrogen end, will start attracting the pi electrons towards itself. खींचने लगेंगे अपनी तरफ. जब ये pi electrons को अपनी तरफ खींचने लगेंगे, so what will happen, from the surface of benzene the pi electron cloud will start moving towards this hydrogen atom of ammonia because ये इसको attract कर रहे हैं. Why? Because they have delta positive charge. Now when they attract pi electron cloud, आप खुद सोचो, बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल C6H6. इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर तीन हाइड्रोजन मूव करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन की सरफेस से थोड़ा दूर जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन की सरफेस से दूर जाएगा, इफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव फार अवे, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से मूव होने लगेगा अवे फ्रॉम दिस कार्बन, so the entire ring will carry a delta positive charge and these pi electron cloud which are moving away will have delta negative charge, जिसके वजह से ये बेंजीन में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी. और जैसे ही कार्बन पॉजिटिव चार्ज में आ जाएंगे, फ्रॉम बैक साइड वी कैन से नाइट्रोजन जिस पे डेल्टा नेगेटिव होता है वो आके इन कार्बन से पार्शियल बॉन्ड बनाएगा. तो मतलब एक साइड से hydrogen of nitrogen ammonia will pull this pi electron cloud because of delta positive charge and make this benzene polar, or you can say induce polarity in benzene. So benzene का एक ring structure है जिसपे pi electron cloud move कर रहा है. यहां से 3 हाइड्रोजन
3 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये आके अटैच होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचते हैं और पीछे से आके ये नाइट्रोजन आके रिंग पे अटैच हो जाता है. सो इट गेट अटैच ऑन द रिंग फ्रॉम बैक साइड. सो वी कैन से हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज पुलिंग दैट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसके वजह से रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, मतलब रिंग पे कार्बन पे क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम अवे फ्रॉम इट. जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन विल कम एंड अटैच. ये जो नाइट्रोजन एटम है अमोनिया का, ये आके रिंग पे अटैच हो जाएगा. सो नाउ वी हैव अमोनिया रिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अमोनिया रिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अमोनिया रिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लाइक दैट अ बॉन्ड विल बी फॉर्म. सो अर्लियर यू विल से सर बेंजीन तो नॉन पोलर था, लेकिन अमोनिया डालने की वजह से अमोनिया के हाइड्रोजन ने क्या किया, उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल किए, और जैसे ही पुल किया बेंजीन में पोलैरिटी इंड्यूस हो गया. क्यों? बिकॉज बेंजीन का ये जो प्लेनर सरफेस है, जब इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जाएगा तो कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जा रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है. सो नाउ द बेंजीन हैज बिकम पोलार. तो वो पोलार नहीं था, उसमें पोलैरिटी इंड्यूस की गई, क्रिएट की गई बाय अ पोलर मॉलिक्यूल अमोनिया. तो दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है. ओके, एंड यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस कि यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस की गई है इसमें, इट इज बीइंग क्रिएटेड इनसाइड. ओके, नाउ in case of attractive forces between the permanent dipole and induced dipole, dipole induced dipole forces, the interaction is proportional to 1 upon r6 between the molecule. You need to remember that in case of dipole induced dipole, the force of attraction is directly inversely proportional to 6 square, 6 raised to 6 power of r, where r is the distance between the molecules. So this was dipole induced dipole, a polarity is induced. Dispersion London force हम लोग बाद में करेंगे. अब हम लोग ion dipole के बारे में बात करते हैं. Let's talk about ion dipole. So very simple example of ion dipole is the interaction of common salt with water. Common salt or rock salt is nothing but NaCl. But NaCl solid form में crystalline compound है. Crystalline compound means where Na plus and Cl minus are properly arranged in ordered manner to form a large structure that is called as lattice. मतलब अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूं तो याद रखने का, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस आयन डाइपोल. अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूं तो NaCl is basically crystalline compound where Na plus and Cl minus ions are properly arranged in an ordered manner to form a lattice structure. तो अब ये कैसा होगा? Let us try to understand. Suppose मैंने ध्यान से देखना, सपोज आई हैव टेकन अरेंजमेंट. देखो दीज ब्लैक डॉट्स आर नथिंग बट Cl माइनस आयंस. ये Cl माइनस आयंस है. ओके, दीज आर Cl माइनस आयंस. अब ये Cl माइनस आयंस है. अगर मैं हाइपोथेटिकली ज्वाइन करता हूं इनको बराबर, देखो तो एक वो क्यूब बनाते हैं लाइक दिस. इफ आई ज्वाइन देम हाइपोथेटिकली लाइक दिस, सो सपोज दिस ब्लैक डॉट्स आर Cl माइनस आयंस. देखो क्यूब बना रहे. फिर Cl माइनस आयंस हमको यहां भी मिलेगा एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. इफ यू सी दिस इज वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूब, तो फेस के सेंटर में भी मिलेगा. नाउ क्वेश्चन इज वेयर आर Na प्लस. सो Na प्लस जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूं, दी Na प्लस आर प्रेजेंट एट दी सेंटर ऑफ ईच एज. देखो इसको एज बोलते हैं, तो एज के सेंटर पे मिलता है हमको. हर एज के सेंटर पे Na प्लस होता है और एग्जैक्टली क्यूब के बीच में एक Na प्लस होता है. नाउ दिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस. सो दीज आर Na प्लस, दीज आर Cl माइनस आयंस, ब्लैक कलर में जो है. नाउ अब ये अरेंजमेंट, अगर मैं सॉलिड पार्टिकल सॉलिड ले रहा हूं NaCl का, तो ये अरेंजमेंट थ्रू आउट द सॉलिड पार्टिकल रहेगा. मतलब यहां पर भी एक हाइपोथेटिकल क्यूब बनेगा, इसके कॉर्नर्स पे आ जाएंगे Cl माइनस, फेस पे आ जाएंगे Cl माइनस. अगेन Na प्लस का रहेंगे, Na प्लस विल बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच एज एंड वन एग्जैक्टली इन द सेंटर. सिमिलरली एक क्यूब यहां बन सकता है, एक क्यूब यहां बन सकता है. सी यहां पर बनेगा 3 डायमेंशनल, इसके ऊपर क्यूब बनेगा लाइक दैट. सो दिस एंटायर बिल्डिंग ऑफ NaCl यू कैन सी अ लैटिस. ये पूरा एक लैटिस है बड़ा सा, जिसमें Na प्लस Cl माइनस आर प्रॉपरली अरेंज एंड ईच unit cell in the lattice here is a cube, so it has a cuboidal unit cell. तो यहां पर cubes repeat होते जाएंगे हर जगह पे, hypothetical cubes.
मतलब इसका मतलब ये कि Na+Cl- अपने आप को इस तरीके से अरेंज करके रखे कि वो हर जगह पे क्यूब्स बना रहे हैं 3 डायमेंशनली अराउंड 3 एक्सेस, Z एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस, सब जगह से क्यूब फैल रहा है। तो ये बड़ी सी जो बिल्डिंग बनेगी NaCl की, इसको हम लोग लैटिस बोलते हैं। एंड वी कैन से NaCl इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज Na+ and Cl- आर प्रॉपरली अरेंज्ड टू फॉर्म अ रेगुलर पैटर्न, दैट इज अ क्यूबॉइडल पैटर्न थ्रू आउट देयर बॉडी, थ्रू आउट देयर सॉलिड, दैट इज कॉल्ड एज अ लैटिस स्ट्रक्चर। So this is the entire lattice and the repeating cubes are called as unit cells। याद रखने का। तो ये आपके NaCl का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें मैंने बता दिया कि ब्लू में Na+ है। सो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ एक Na+ को कि दिस इज ब्लू Na+ एंड दिस इज यहाँ पर एक मार्क कर देता हूँ ब्लैक में Cl- है। ठीक है, लैटिस पे है। नाउ मोमेंट यू ऐड दिस लैटिस टू वाटर, आपने इसको पानी में ऐड कर दिया। पानी में जैसे ही ऐड करोगे, वाटर is a V-shaped molecule and a polar molecule। बराबर देखो, OH डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। तो ये एक V-shaped molecule है जिसपे O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और H पे है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बना रहा हूं V-shape। अब बराबर देखोगे तो पूरे लैटिस में देयर आर सम एम्प्टी स्पेस, दिख रहा है ये खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। दीज एम्प्टी स्पेस आर कॉल्ड एज वॉइड्स। तो इस वॉइड, जैसे ही आप सॉलिड NaCl को पानी में डालोगे, the water molecule will start moving inside the lattice। लैटिस के अंदर चलेंगे through this voids। ये अंदर जा रहे, जैसे ही अंदर जा रहे, what will happen? Water has two ends। If you see properly, it is a dipole molecule। It has two ends, negative end and positive end, and the entire lattice have ions in them। So what will happen? ये Na+ है। Na+ को बहुत सारे water molecule अपने negative end से सराउंड कर लेंगे। तो सपोज दिस Na+ is surrounded by negative end। See, these are negative end। ये नेगेटिव एंड से सराउंड कर लेंगे, सराउंड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है पॉजिटिव एंड है, ये भी दूसरे नेगेटिव एंड वाटर से अटैच हो गए। सी, सो वी कैन क्लियरली सी कि ईच Na+ इज सराउंडेड बाय नेगेटिव एंड्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। फिर ये जो वाटर है, ये और वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होकर एक बहुत बड़ा सा स्पीयर है जिसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है और बीच में Na+ है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करेंगे और मूव हो गए। जैसे ही मूव हो गए, Na+ लैटिस में से ब्रेक होगा और मूव होना चालू हो जाएगा इनके साथ। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। सिमिलरली Cl- आयंस वाटर के पॉजिटिव एंड से सराउंड होगा। देखो ऐसा सराउंड हो जाएगा, पॉजिटिव एंड्स। तो अगेन ये Cl- आयंस को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल पॉजिटिव H+ के एंड से घेर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। दे विल टेक द हीट ऑफ वाटर, एंडोथर्मिक, और वहां से मूव हो गए। इसके लिए जब NaCl को पानी में डाल के स्टर करते हो, वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। क्यों ड्रॉप होता है? बिकॉज Na+ Cl- आर सराउंडेड बाय वाटर एंड दोज वाटर विल ब्रेक द एंटायर लैटिस एंड डिसॉल्व दैट NaCl। तो आप स्टर करने के बाद NaCl गायब हो जाएगा अंदर से। क्यों? बिकॉज Na+ Cl- आर ब्रोकन डाउन बाय द वाटर, और वाटर इनको ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी हीट अपने आप से एब्जॉर्ब करके यूज करेगा। इसके लिए पानी का थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इफ यू रिमेंबर द ट्रेडिशनल वे ऑफ गेटिंग ऑफ फीवर, हाई टेम्परेचर फ्रॉम द हेड इज you take cold chilled water and you add lot of NaCl to it, then you take a cotton cloth, soak it, तो उसमें वाटर और NaCl आ जाएगा। आप उसको पेशेंट के फोरहेड पे रखोगे जो हाई फीवर में है। सो व्हाट विल हैपन, NaCl को ब्रेक होने के लिए थोड़ा सा हीट चाहिए और पानी चिल्ड था, इसके लिए वो क्या करेगा, पेशेंट के फोरहेड से हीट लेगा और पूरा लैटिस ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज called as ion, Na+ Cl- are ions, water is dipole, so this is called as ion dipole interaction। अब याद रखने का, सबसे अच्छा इंटरैक्शन Cl- और Na+ में से कौन करेगा वाटर के साथ? Na+ करेगा। क्यों? Na+ is a cation, cation loses electron, तो उनमें शेल कम होते हैं, इसके लिए उनका साइज बहुत छोटा होता है। कटायन का साइज छोटा होने की वजह से कटायन का जो न्यूक्लियस होता है वो ऑपोजिट आयन, वाटर में ऑपोजिट आयन कौन था? ऑक्सीजन। न्यूक्लियस और ऑक्सीजन पे क्या था? नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो Na+ कटायन छोटा होता है, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो इस नेगेटिव ऑक्सीजन से बहुत नजदीक होगा। इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। इसके लिए वी कैन से कि जितना कटायन छोटा होता है उसका इंटरैक्शन
डाइपोल मॉलिक्यूल के साथ यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ बहुत स्ट्रांग होता है, तो Na+ इज अ स्मॉलर कटायन, इज अ वेरी स्ट्रांग इंटरैक्शन विथ वाटर, सो वी कैन से Na+ हैव ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी विद वाटर। अगर इसी जगह पे आप Li+ लो तो Li+ का साइज तो और छोटा है Na+ से, तो Li+ विल हैव मोर ग्रेटर इंटरैक्शन विद वाटर एज कंपेयर टू Na+। सो इसके अंदर याद रखने का, इन केस ऑफ आयन डाइपोल कि आयन डाइपोल इंटरैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। जितना कटायन छोटा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, ठीक है। दिस इंटरैक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइड्रेशन। तो वी कैन से स्मॉलर कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेंगे बिकॉज वो ज्यादा वाटर से बॉन्ड बनाएंगे, और जितना ज्यादा बॉन्ड बनता है, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो व्हेनेवर बॉन्ड इज फॉर्म एनर्जी इज रिलीज, व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो वाटर के साथ में Na+ बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन रख रहा है एज कंपेयर टू Cl-, क्योंकि Cl- एक लार्जर अनायन है। तो लार्जर अनायन का इंटरैक्शन वाटर यानी डाइपोल मॉलिक्यूल के साथ बहुत वीक होता है और स्मॉलर कटायंस का बहुत स्ट्रांग होता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट कटायन कौन है? हाइड्रोजन। इसके लिए H+ के इंटरैक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं हाइड्रोजन। क्लियर है? सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि Na+ विल हैव ग्रेटर इंटरैक्शन, स्मॉलर द कटायन, greater will be the ion dipole interaction. Okay, and you need to remember ion dipole में मैंने आपको अभी बताया कि जितना ज़्यादा इंटरैक्शन होगा आयन डाइपोल, जितना ज़्यादा स्मॉलर कटायन होगा आयन डाइपोल के अंदर, उतना स्ट्रॉन्ग उनका इंटरैक्शन होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब नेक्स्ट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल? इसका मतलब आप एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल ले लो, नॉन पोलार, उसमें आयन ऐड करो। आयन क्या करेगा? अपने इंटरैक्शन से वो नॉन पोलार मॉलिक्यूल को पोलार कर देगा। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने ऐसा लिया है A2 अ मॉलिक्यूल, दोनों एटम सेम है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब बेसिकली ये एक है नॉन पोलार। अभी आपने इसके अंदर एक आयन डाल दिया है B+। क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करके एक साइड पे इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एक साइड मूव होगा, जिसके वजह से एक A पे आएगा डेल्टा+ चार्ज, एक पे आएगा डेल्टा- चार्ज, और पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। सो इसमें पोलैरिटी कौन इंड्यूस कर रहा है? एक आयन। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आयन इंड्यूस डाइपोल। आयन इंड्यूस डाइपोल, यू नीड टू रिमेंबर दिस कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, लाइक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। एक डाइपोलर मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था अमोनिया विद बेंजीन। सिमिलरली यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हो आयोडीन का, आयोडाइड आयंस, और उसमें एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप ऐड कर सकते हो। दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा एक आयन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज आयन इंड्यूस डाइपोल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, स्मॉलर द कटायन ग्रेटर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे स्मॉलेस्ट कटायन पीरियोडिक टेबल में कौन है? हाइड्रोजन। इसके लिए हाइड्रोजन का एक अलग ही बॉन्डिंग स्टेट आ जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, जिसके वजह से strength between the molecule, the intermolecular forces between the molecule will increase. Let's take a simple example to understand this. मैं यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल इसमें है नाइट्रोसिल फ्लोराइड, NOF। नाइट्रोसिल फ्लोराइड में नाइट्रोजन डाल रहा हूँ, that is attached to double bond oxygen and attached to fluorine. If you see, fluorine is most electronegative. First, सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सेकेंड ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, अभी अगर मैं ये नाइट्रोसिल फ्लोराइड की बात करूं तो ये एक पोलार मॉलिक्यूल है, जिसमें फ्लोरीन डेल्टा- पे आएगा, ऑक्सीजन डेल्टा- पे आएगा, नाइट्रोजन डेल्टा+ पे आएगा। और अब मैं इसको कंपेयर करूंगा H2O से, तो यहां पर ऑक्सीजन डेल्टा- है, हाइड्रोजन डेल्टा+ है, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। दोनों भी पोलार है। बट अगर मैं किसी को भी पूछूंगा
कि ये दोनों में से आपको ज़्यादा पोलैरिटी किस में दिखाई दे रही है, तो मुझे कोई भी ये बोलेगा सर कि ज़्यादा पोलैरिटी मुझे नाइट्रोसिल फ्लोराइड में दिखाई दे रही है, ये ज़्यादा पोलार है क्योंकि यहाँ पर दो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। लेकिन प्लस मैं ये पूछूंगा कि विच विल हैव ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सो यू विल से सर दिस नाइट्रोसिल फ्लोराइड, the force of attraction between two nitrosyl fluoride will be very strong as compared to force of attraction between two water molecule. Why? Because आप मुझे एक कॉमन आंसर ही दोगे सर नाइट्रोसिल फ्लोराइड में दो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सर ये बहुत ज्यादा पोलार होगा एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर में एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, और यहां पर दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं नाइट्रोजन से। सो आपका ये आंसर होगा कि सर नाइट्रोसिल फ्लोराइड ज्यादा पोलार है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू व्हाट, वाटर। तो अगर ये ज्यादा पोलार है तो आपके कॉमन आंसर के हिसाब से दिस नाइट्रोसिल फ्लोराइड विल हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू वाटर। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नाइट्रोसिल फ्लोराइड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बिकॉज ऑफ ग्रेटर पोलैरिटी एज कंपेयर टू वाटर, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। बट प्रैक्टिकल एविडेंस क्या बोलता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है -56 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। तो सी प्रॉपर्ली, ये तो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड नहीं है, गैस है ये, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल अटैच्ड टू नाइट्रोजन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों? रीजन, बिकॉज वाटर के अंदर यू विल सी दीज H+ आयंस विच इज द स्मॉलेस्ट कटायंस, विच इज द स्मॉलेस्ट एटम्स। सो इनका इंटरैक्शन ऑक्सीजन के साथ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू अदर। क्लियर है? सो याद रखने का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से स्ट्रेंथ बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप बहुत सारी जगह यूज सकते हो, फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI। तो HF, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगा एज कंपेयर टू HCl, HBr, HI। देन नाइट्रोजन फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, हैलोजन फैमिली HF, HCl, HBr, HI, ये सब गैसियस स्टेट में, HF लिक्विड में। क्यों वाई रीजन? बिकॉज यहां पर दो HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। सिमिलरली इफ यू कंपेयर अमोनिया, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, PH3, ASH3, NH3, इसमें अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहेगा। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सबका हाइड्रोजन लगा दो तो H2O, H2S, H2SE, H2TE, तो इसमें सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाटर का मिलेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है ही नहीं ऑलमोस्ट। सो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, देखो मैं सारे पहले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं सीरीज के, नाइट्रोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के फर्स्ट एलिमेंट जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के हाइड्राइड्स में H2O is a hydride of oxygen, ammonia is a hydride of nitrogen, HF is a hydride of fluorine। इनके हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखना, जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। देन the last force of attraction which we are going to discuss is very interesting forces that will be called as dispersion forces। dispersion forces और London forces कहाँ यूज करते हैं? तो dispersion और London forces के बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन क्लास में नॉर्मली पूछता हूँ कि क्या हम नोबल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नोबल गैस मतलब दे आर नॉट पोलार, दे आर इंडिविजुअल एटम्स, आप उनको लिक्विफाई कर रहे हो, मतलब दो नोबल गैस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो, जो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो पोलार ही नहीं है, उनमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो फिर वो आपस में अट्रैक्ट कैसा होंगे? और अगर वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो लिक्विफाई कैसा होंगे? नो,
इट्स नॉट करेक्ट. यू हैव लिक्विड जेनॉन, लिक्विड होता है, क्रिप्टन होता है लिक्विफाई. हीलियम बहुत डिफिकल्ट है लिक्विफाई होना, बट उसके नीचे जितने भी एटम जाओगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जितना साइज नोबल गैस का बढ़ता जाएगा लिक्विफिकेशन ईजी होगा. तो अगर नोबल गैस अभी O2 नॉन पोलर है, दोनों ऑक्सीजन एटम है, N2 नॉन पोलर है, दोनों नाइट्रोजन एटम है, लेकिन क्या इनको लिक्विफाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. वी हैव हर्ड अबाउट लिक्विड ऑक्सीजन, वी हैव हर्ड अबाउट लिक्विड नाइट्रोजन. तो ये कैसा लिक्विफाई हो रहा है? इनके पास कोई चार्ज नहीं होता. इफ यू टॉक अबाउट O2 मॉलिक्यूल, इट इज O डबल बॉन्ड O, दोनों ऑक्सीजन एटम है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी के पास भी शिफ्ट नहीं होगा, तो इनमें चार्ज जीरो होता है. इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इफ यू टॉक अबाउट N ट्रिपल बॉन्ड N2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इफ यू टॉक अबाउट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये नॉन पोलर एटम्स है, इसमें कोई चार्ज नहीं होते. अगर इनमें चार्ज नहीं होते हैं तो जब इनको लिक्विफाई करते हैं, जब इनको लिक्विफाई आप करते हो तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं. तो अगर ये लिक्विफाई हो रहे तो ये फैक्ट है कि वो लिक्विफिकेशन में जा सकते हैं. ये फैक्ट है कि वो लिक्विफाई हो सकते हैं. तो अगर वो लिक्विफाई हो सकते हैं मतलब उनके बीच में क्या डेवलप हुआ होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? डायपोल डायपोल नहीं सर, पोलर तो है ही नहीं. डायपोल इंड्यूस डायपोल नहीं सर, कोई और नो मिक्स ही नहीं कर रहे हो आपको दूसरा मॉलिक्यूल. आयन डायपोल नो सर, देयर इज नो आयन. आयन इंड्यूस डायपोल नहीं सर, यहां पर कोई आयन नहीं है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर, इनमें कोई हाइड्रोजन नहीं है. तो इनमें कौन सा फोर्सेस है जिससे ये लिक्विफाई होते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस. अब ये कैसा होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस हम लोग जो स्टडी करते हैं, ये सबसे वीक फोर्स है. इन सब में से सबसे वीक फोर्स है डिस्पर्शन एंड लंडन फोर्सेस. सबसे वीक होता है. ये कहां देखने को मिलता है? बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. कभी जब उनको आप बहुत ज्यादा कंप्रेस करके इनका टेम्परेचर बहुत लो करते हो, माइनस में चले जाते हो, तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन there will be a distortion created in the atom. What is a distortion in the atom? ध्यान से सुनना. अगर मैं किसी एटम की बात करता हूं तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. ओके, इन अ यूनिफॉर्म मैनर, इन अ वेरी यूनिफॉर्म मैनर. इफ आई डिस्टॉर्ट दिस एटम, अगर इस एटम को मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूं तो देखो डिस्टॉर्शन में ये कैसा दिख रहा है. ये डिस्टॉर्शन में ऐसा दिख रहा है कि इसका न्यूक्लियस एक साइड पे है और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी दूसरी साइड पे बहुत ज्यादा हो गई. अगर आप एटम को डिस्टॉर्ट करके ऐसे सिचुएशन में लेके आते हो तो एटम का एक साइड डेल्टा प्लस होता है और दूसरा साइड डेल्टा नेगेटिव होता है, जिसके वजह से उसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है उस वक्त के लिए, फॉर दैट इंस्टेंट. एंड इफ देयर इज अनदर एटम, a non-polar atom is present, then these negative charge of the electron will try to pull this nucleus at one side and the electron of the other. So we can say कि अगर ये एक एटम पोलर हुआ और इसके कांटेक्ट में बहुत सारे एटम्स हैं तो ये उनको भी पोलर कर देगा और सारा पोलैरिटी डिस्पर्स कर देगा थ्रू आउट द मीडियम. और जैसे ही पोलैरिटी डिस्पर्स होगी सब इंस्टेंटली पोलर हो जाएंगे और उसी टाइम पे लिक्विड बन जाएंगे. मतलब नॉर्मल अगर इनका आप कन्वर्जन देखो लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड तो बहुत क्विक होगा. एट सर्टेन टेम्परेचर ये लिक्विड से सडन गैस बन जाएंगे और वही टेम्परेचर को लो करोगे तो गैस से सडन लिक्विड बन जाएंगे. बट अगर आप समझो वाटर की बात करते हो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होता है, अगर आप उसको बॉईल करोगे तो वो स्लोली लिक्विड में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है. बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें जैसे ही वो टेम्परेचर चेंज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ, वो फट से पूरे गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे रैंडमली, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 वीक फोर्स. यहां पर एक एटम दूसरे एटम को पकड़ के रखेगा बट एट अ वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जहां पर वो एटम को बहुत ज्यादा अपने स्क्वीज करके रखा हुआ है, कंप्रेस करके रखा हुआ है, जिसके वजह से एक आधा एटम डिस्टॉर्ट होगा. अगर उसमें से एटम डिस्टॉर्ट हुआ मतलब उसमें पोलैरिटी क्रिएट हुई, वो आसपास के एटम में भी पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा, डिस्पर्स कर देगा. लाइक सपोज मुझे करंट लगा और मेरे साथ 3-4 लोग और है तो उनमें भी करंट डिस्पर्स हो जाएगा वेरी रैंडमली, वेरी क्विकली. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस. इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स भी बोलते हैं. मतलब एट दैट इंस्टेंट अ मॉलिक्यूल atom get distort and because of the distortion it becomes polar and due to which it spread polarity, it disperse polarity throughout the medium and change of state will take place. गैस से सीधा लिक्विड बन जाएगा
सो इफ देयर आर सो मेनी एटम्स एसोसिएट, बहुत सारे एटम्स अगर आपने क्लोजली पैक कर दिए, वेरी क्लोजली एट अ वेरी लो टेम्परेचर की इनकी काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल हो गई है, और अगर सपोज ये एटम डिस्टॉर्ट हुआ पॉजिटिव एट 1n एंड नेगेटिव एट 1n, तो ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस बनेगा। अब ये क्या करेगा, दूसरे एटम को भी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एटम का दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना चालू करेगा, तो इनके न्यूक्लियस भी शिफ्ट होकर डिस्टॉर्ट हो गए, तो अब ये भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस हो गया। अब ये डेल्टा माइनस दूसरे एटम को पोलार करते जाएंगे, सो पोलैरिटी विल बी डिस्पर्स थ्रू आउट द मीडियम एंड change of state take place. So याद रखने का, dispersion or London forces, which is also called as instantaneous dipole forces, they are developed between non-polar molecules. अब इसमें एक चीज समझना जरूरी है कि अगर मैंने xenon लिया जिसका साइज बहुत बड़ा है, सब इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में न्यूक्लियस है, और हीलियम लिया जिसका साइज बहुत छोटा है, तो xenon डिस्टॉर्ट होना बहुत इजी है, बिकॉज सिंस इट हैज अ लार्जर साइज, the electrons are very far away from the nucleus. If the electrons are very far away from the nucleus, मतलब the force of attraction between the electron and nucleus is less, तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियस एक जगह पे इजीली शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज द सरफेस एरिया, द साइज ऑफ द एटम इज मोर, द डिस्टॉर्शन बिकम वेरी इजी। यहां पर साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे हैं हीलियम में वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, तो न्यूक्लियस उनको छोड़ेगा ही नहीं डिस्टॉर्ट होने के लिए, सिंस दे आर वेरी क्लोज। इसके लिए व्हाट वी से कि इन केस ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, और यू कैन से सरफेस एरिया ऑफ एटम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली xenon का मास हीलियम से ज्यादा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसमें डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं, और यू कैन से साइज ऑफ द एटम इज मोर, सरफेस एरिया इज मोर, मॉलिक्यूलर मास इज मोर। बट व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर मास? फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में जाओगे तो अगर मैं ये एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन, और ये एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं CH3 CCH3H CH3 आइसोब्यूटेन, N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, both of them has same molecular formula of C4H10, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। बट इफ आई टेक वन N ब्यूटेन विद द अनदर N ब्यूटेन, वन आइसोब्यूटेन विद द अनदर आइसोब्यूटेन, तो बराबर देखो, तो N ब्यूटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है, आइसोब्यूटेन का सरफेस एरिया कम है। इसके लिए वन N ब्यूटेन विद द अनदर ब्यूटेन विल हैव अ ग्रेटर डिस्पर्शन फोर्सेस एज कंपेयर टू टू आइसोब्यूटेन। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब लीनियर जितना मॉलिक्यूल होगा, उतना अच्छा डिस्पर्शन फोर्स होगा। मतलब डिस्पर्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये भी याद रखने का। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना डिस्पर्शन फोर्स कम होता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल नॉन ब्रांच लीनियर है, उतना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा डिस्पर्शन फोर्स, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि N ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से ज्यादा है। लेकिन अभी यही N ब्यूटेन को आप प्रोपेन से कंपेयर करोगे तो प्रोपेन का मोलार मास N ब्यूटेन से कम है, तो N ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो मोलार मास, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीजेस। और डिस्पर्शन फोर्सेस हम लोग कब पढ़ते हैं? फॉर अ मॉलिक्यूल विच आर नॉन पोलर, जिसमें पोलैरिटी बहुत कम होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ऑल्सो दीज फोर्सेस आर 1/r6 टू द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। मतलब ये भी डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल की तरह काम करते हैं। मतलब डिस्पर्शन फोर्सेस की अगर मैं और बात करूं तो डिस्पर्शन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r6 ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, अब जैसा एग्जाम्पल मैंने ये लिया, हाँ मैंने आपको भी बताया था H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम हटा दो, रेडियो एक्टिव है। सबके साथ हाइड्रोजन लगा दो तो एक बन जाएगा H2S, एक बन जाएगा H2SE। ठीक है, और अगर मैं यहां पर क्वेश्चन पूछूं तो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज वाटर के अंदर क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से एक्सेप्शनली उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव H2S, H2SE, H2TE। ये सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता,
तो अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है तो एक H2S दूसरे H2S से कैसा अट्रैक्ट होगा? दे विल अट्रैक्ट वायर डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो सर डिस्पर्शन फोर्सेस देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे मिनिमम फोर्स डिस्पर्शन फोर्स है। इफ देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफ देयर इज नो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इफ देयर इज नो आयन डाइपोल इंटरैक्शन, इफ देयर इज नो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, देन इफ द सब्सटेंस गेट लिक्विफाई on cooling, मतलब it will develop the minimum force, that is the dispersion forces। तो इन सब में dispersion forces देखने को मिलेगा। एक H2S दूसरे H2S से dispersion force से अटैच होगा, एक H2SE दूसरे H2SE dispersion force से अटैच होगा, एक H2TE दूसरे H2TE से dispersion forces से अट्रैक्ट होगा। सिर्फ इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी सबके अंदर dispersion forces है। अब मैं आपको पूछूंगा कि इन तीन में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आप इजीली बोलोगे सर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब नहीं है, तो इनमें कौन से फोर्स है? डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम, दैट इज मोलार मास। तो सल्फर, सब में हाइड्रोजन कॉमन है, तो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम को आप कंपेयर करोगे, जिसमें सबसे ज्यादा मोलार मास किसका है? टेलुरियम का। इसके लिए H2TE में जो डिस्पर्शन फोर्स होगा वो H2SE हाइड्रोजन सेलिनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड से ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर मोलार मास एंड ग्रेटर साइज ऑफ द एटम। सो नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर विल बी H2O, H2TE, H2SE और सबसे लोवेस्ट हो जाएगा H2S। देखो सेकेंड एलिमेंट है टेबल में, ऑक्सीजन के नीचे है, ऑक्सीजन के नीचे है, तो सीरीज में सेकेंड एलिमेंट है, बट H2S विल बी हैविंग द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में नहीं है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो आप कंपैरिजन किस में करोगे? द कंपैरिजन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस। तो डिस्पर्शन फोर्स के हिसाब से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन तीनों में हाईएस्ट हो जाएगा H2TE बिकॉज TE हैज अ ग्रेटर साइज एज कंपेयर टू SE और S। सो याद रखने का डिस्पर्शन फोर्सेस, अगर आपको कोई फोर्सेस नहीं है तो वहां पर डिस्पर्शन फोर्सेस जरूर होगा। डिस्पर्शन फोर्सेस इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज ड्यू टू distortion of the atom, where the atom get polarized and it will disperse the polarity throughout the medium. It depends upon the size, greater the size, the greater the dispersion force, greater surface area, greater molar mass, but inverse proportional to the branching in case of organic. Okay, so guys, this entire thing is with respect to intermolecular forces. Read your notes, read textbook and note down few important points. Next lecture हम लोग गैस के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। Till then, take care. Bye.